Yes, ma'am. ओके, रीड कीजिए। In our daily life, we see different objects around us. We find that some objects appear to be stationary while others seems to be in motion. How do we bring any stationary object into motion? To ride a bicycle, we need to pedal it. When we stop pedaling, the speed of the cycle decrease. To keep the cycle in motion, we need to pedal again. Similarly, to bring a ball in motion, we can push or throw it. On applying a push, does the ball get in motion forever, or does it come to a stop in a wheel? What is the reason behind the ball to stop? To bring a ball in motion, we need to push it and then it slowly come to a halt. How does a ball in motion come to rest? Does it stop on its own, or is there a factor that causes it to stop? We have read earlier that to bring an object into motion or to bring into to it to rest, we need an external factor which is called as force. Activity 1. In this activity, we need a smooth ball made up of wooden piece to wooden plank of length 1 meter and 30 centimeter each, a plastic ray and sand and some oil. By placing the smaller plank at 45-degree angle from the ground, make an inclined plan. Figure 1. Place the longer plank between the inclined plane, touching it as shown in the figure. And measure the distance covered by the ball on the longer plank. Now replace the longer plank with a tray filled with sand. Again, place the ball at the top of inclined plane and leave it. Now measure the distance covered by the ball on the tray of sand. Similar, repeat the above step using a smooth plastic tray and some such object which gets smoother after applying oil. Measure the distance covered by the wooden ball on all of the surface. Chapter 5, Force and Laws of Motion. In our daily life, we see different objects around us. दैट मीन्स कि हम अपने डेली लाइफ में हर रोज अलग अलग चीजों को देखते हैं ना अपने चारों तरफ. वी फाइंड दैट सम ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी व्हाइल अदर्स सीम टू बी इन अ मोशन. मतलब इनमें से कुछ चीजें जो होती हैं वो स्टेशनरी स्टेट में होती है, मतलब स्थिर होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, मोशन नहीं करते. जबकि कुछ चीजें जो होती हैं वो मोशन स्टेट में होती है. हाउ डू वी ब्रिंग एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मोशन स्टेट में कैसे ला सकते हैं? अगर कोई चीज स्थिर है तो उसको हम मोशन स्टेट में कैसे ला सकते हैं ना. टू राइड अ बाइसिकल वी नीड टू पैडल इट. जैसे कि एक बाइसिकल है, खड़ी रहेगी, उसको मोशन में लाने के लिए हमें पैडल मारने की जरूरत होगी ना. व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल डिक्रीजेस. जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो बाइसिकल का जो स्पीड है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. तो कीप द साइकिल इन मोशन वी नीड टू पैडल अगेन. और फिर से हमें उसे मोशन स्टेट में लाने के लिए फिर से हमें पैडल मारने की जरूरत होती है. सिमिलरली टू ब्रिंग अ बॉल इन मोशन वी कैन पुश और थ्रो इट. इसी तरह से एक बॉल को मोशन स्टेट में लाने के लिए हमें उसे पुश करना होता है या फेंकना होता है. ऑन अप्लाइंग अ पुश डज द बॉल गेट इन मोशन फॉरएवर. अगर हम बॉल पे पुश करते हैं तो वो मोशन स्टेट में आ जाता है, वो मोशन करते ही रहता है. और डज इट कम टू अ स्टॉप इन अ वाइल? और थोड़ी देर रुक जाता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बॉल टू स्टॉप? तो बॉल के रुकने का रीजन क्या हो सकता है? टू ब्रिंग अ बॉल वी नीड, यस, to bring a ball in motion we need to push it and then it slowly comes to a halt. मतलब अगर एक
बॉल को हमें मोशन स्टेट में लाना है तो हमें उसे पुश करने की जरूरत होती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जाता है और फिर वो रुक जाता है। हाउ डज अ बॉल इन मोशन कम टू रेस्ट? तो ये बॉल जो है वो मोशन स्टेट से रेस्ट स्टेट में कैसे आया? डज इट स्टॉप ऑन इट्स ओन और इज देयर अ फैक्टर दैट कॉजेस इट टू स्टॉप? क्या ये अपने आप रुक गया या फिर कोई फैक्टर है जो कि इसको रोक रहा है? On applying a push, does the sorry, we have read earlier that to bring an object into motion or to bring it to rest we need an external factor which is called force. तो अभी हमने क्या देखा, एक जो बॉल होता है उसे हमें स्टेशनरी स्टेट में लाने के लिए या फिर मोशन स्टेट में लाने के लिए फैक्टर की जरूरत होती है, ठीक है, और उसी फैक्टर को फोर्स कहा जाता है। जो फैक्टर उस पर लगाया जाता है उसी फैक्टर को फोर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? मैम। यस मैम। ओके, चलिए एक एक्टिविटी। मैम हाँ मैम हार्ड का मतलब क्या होता है? पहले तो धीरे से कम होना, फिर उसके बाद रुक जाना, ठीक है, रेस्ट स्टेट में आ जाना। यस मैम। In this activity, we need a smooth ball made up of wooden piece, two wooden planks of length, 1 meter and 30 centimeter each, a plastic tray, sand and some oil. जो हमें मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय प्लेसिंग द स्मॉलर प्लैंक एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द ग्राउंड मेक एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर देखो फिगर में दिखाया गया है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया है, दो लकड़ी के तख्ते लिए गए हैं। वुडन प्लैंक मीन्स होता है लकड़ी के तख्ते, ठीक है, तो दो वुडन प्लैंक लिए गए हैं, उसको इंक्लाइंड किया गया 45 एंगल, ये देखिए एंगल बना हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से इसको इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया है। प्लेस द लॉन्गर प्लैंक बिलो इन इंक्लाइंड प्लेन। जो लॉन्गर प्लैंक रहेगा, मतलब लंबा वाला जो प्लैंक रहेगा लकड़ी का तख्ता, उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, है ना, टचिंग इट एज शो इन द फिगर। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया उस तरह से ये जो प्लैंक है एक दूसरे को टच करते हुए होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए, प्लेस द वुडन बॉल एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लैंक एंड लीव इट। अब हम एक लकड़ी का बॉल लेंगे, वुडन प्लैंक मीन्स वुडन बॉल मीन्स लकड़ी का बॉल लेंगे और उसे हम ऊपर यहाँ रखेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल ऑन द लॉन्गर प्लैंक। आपको क्या मेजर करना है, तो जब हम वुडन बॉल जो है ऊपर से उसको छोड़ देते हैं तो उसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है कि जो लॉन्ग प्लैंक है वुडन प्लैंक ये वाला, वो कहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है, उसको हमें मेजर करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ रिप्लेस द लॉन्गर प्लैंक विद अ ट्रे फिल्ड विद सैंड। इस लॉन्गर प्लैंक को हम हटा देते हैं और इसके जगह हम रेत से भरा हुआ ट्रे रख देते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, रेत से ट्रे रख देते हैं। अगेन प्लेस द बॉल एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब फिर से हम बॉल को क्या करते हैं, जो वुडन बॉल हमने लिया उसको फिर से हम ऊपर से जो वुडन प्लैंक है वहां से उसको छोड़ देते हैं। फिर से हमें डिस्टेंस को मेजर करना है कि उस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सिमिलरली रिपीट द अबव स्टेप यूजिंग अ स्मूथ प्लास्टिक ट्रे। इसी तरह से इस एक्टिविटी को आपको फिर से रिपीट करना है, बस आपको क्या करते जाना है, ये जो लॉन्ग वुडन प्लैंक है उसके जगह पर आपको कभी ट्रे लेना है, स्मूथ ट्रे ले लेना है आपको प्लास्टिक का, या सम सच ऑब्जेक्ट, इसी तरह का कुछ स्मूथ ऑब्जेक्ट ले लेना है, या फिर ऑयल लगा हुआ कोई ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको
को यहाँ से लीव करना है और आपको डिस्टेंस को मेजर करते जाना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी समझ आई? यस मैम। यस मैम। Now try answering the following question depending upon the above activity. अब एक्टिविटी जो हमने किया उसके बेस पर आपको आंसर देना है। डिड द बॉल कवर सेम डिस्टेंस ऑन ऑल द सरफेस? क्या बॉल जो है वो सभी सरफेस पर सेम डिस्टेंस को कवर करेगा क्या? यस मैम। नो मैम। नो मैम। Distance covered by the ball on different surface in particular order. आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब वो कैसे डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो कितने कितने डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, इन विच सिचुएशन डिड द बॉल कवर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड व्हाई? कौन सी सिचुएशन में बॉल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, दूर तक जाएगा, और क्यों? बता सकते हैं आप? नो मैम। मैम क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और आवाज नहीं आ रही आपकी। किसी पे कम। मैम क्योंकि किसी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और किसी पे मैम क्योंकि किसी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और किसी पे कम। मैम किसी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और किसी पे कम लग रहा है। In the earlier classes, we have read about the frictional forces which are responsible for bringing the motion of an object to rest. मतलब हमने प्रीवियस क्लास में भी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, मतलब जब हम 8th क्लास में भी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? यस मैम। फ्रिक्शनल फोर्स हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, याद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? वो सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि वो सरफेस कैसा है, जिस सरफेस के कांटेक्ट में वो आता है वो सरफेस स्मूथ है या रफ है, उसके बेस पर फ्रिक्शनल फोर्स का चेंज होना बेस्ड होता है। ठीक है, the ball covers larger distance on the surface on which it experience lower frictional force. मतलब ये है कि जो बॉल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस को अगर कवर कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कम है ना। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में लाने का काम करता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहता है तो कोई भी मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट जल्दी से रुक जाता है, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है तो कोई भी मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट जल्दी रुकता नहीं है, बल्कि वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। यस तो मैम। कोई ऑब्जेक्ट लॉन्गर डिस्टेंस को cover कर रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कम है ना। On this basis, state which of the surface in the given activity applies the smallest frictional force. अब इस एक्टिविटी से या इसके बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन से सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम लगेगा? मैम वुडन सरफेस पे। मैम वुडन प्लैंक वाले पे कम लगेगा, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और फोर्स कम लगेगा। मेरी बात सुनिए पहले, अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा ना तो बॉल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका मतलब ये कि वो स्मूथ सरफेस पर ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। यस मैम। ठीक है, और रफ सरफेस पर करेगा, कम डिस्टेंस को कवर करेगा, तो रफ सरफेस पर ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। यस मैम।
As we saw, an object remains in a state of motion for much longer on the surface which apply lower frictional force. हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कंटिन्यू अगर मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, लंबे समय तक मोशन कर रहे होते हैं, मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि उस पर लोअर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम है तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लंबे समय तक मोशन करेगा, है ना। Yes, ma'am. समझ आया फ्रिक्शनल फोर्स? Yes, मैम। ma'am. What happen if the frictional force on a surface becomes zero? क्या होगा अगर किसी सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा? Will the object ever stop? क्या ऑब्जेक्ट कभी स्टॉप होगा, रुकेगा कभी? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। नो नहीं, क्योंकि ना अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है तो वो कैसे स्टॉप होगा? फ्रिक्शनल फोर्स अगर वहां पर रहेगा ही नहीं तो वो स्टॉप कैसे होगा? According to Galileo, in the absence of an external force of resistivity, an object moving at a constant velocity remains in its state of motion, and similarly an object at rest in the state of rest until an external force work on it. Galileo के according, Galileo एक साइंटिस्ट थे, in the absence of an external force of resistivity, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में या सरफेस में एक्सटर्नल फोर्स कम होता है या एब्सेंस होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, और उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो वर्क नहीं करेगी। मान लीजिए एक कोई भी चीज रखी हुई है टेबल पे, ठीक है, अगर आप उसको उठाते नहीं है, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, क्या वो अपने एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या? No, ma'am. No, ma'am. नहीं जा सकता। उसी तरह से अगर एक बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, अगर आप उसको उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो रुकेगी क्या? नो मैम। No, नहीं। ma'am. तो किसी भी को रेस्ट पोजीशन पर लाने के लिए या रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन स्टेट में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है ना। Yes, ma'am. यस मैम। नहीं करेगा। Therefore, we say that an object remain in its state of motion or rest unless an external force bring a change in its state. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अगर रेस्ट ऑफ मोशन में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक कि वो मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज नॉट इनर्शिया, इसी को कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है, ठीक। इनर्शिया किसे कहा जाता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर वो मोशन स्टेट में है या रेस्ट स्टेट में है, ठीक है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उसका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। वो मोशन स्टेट से रेस्ट स्टेट में नहीं आएगा या रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में नहीं आएगा। तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसी को इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। We can witness several example of inertia in our daily life। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं इनर्शिया के। फॉर एग्जांपल, ऑन सडनली अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन मूविंग व्हीकल, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से उस पर ब्रेक लगा देते हैं तो वो मोशन स्टेट से रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। उसी तरह से और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट involuntary bends in the forward direction and the items in the vehicle also। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ अभी मैं बोल रही हूँ तब आएगी ना वॉइस। जैसे कि अगर आप बस में बैठे रहते हैं, ठीक है, अचानक से उस पर ब्रेक लगता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रहता है या आप जो होते हैं वो भी अगर आप स्टेशनरी स्टेट में हैं तो आप हिलते हैं ना, मोशन स्टेट में आ जाते हैं। यस मैम। यू मस्ट हैव, इसको फील कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल आप बता सकते हैं। कैन यू टेल व्हाई डज दिस हैपन, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? A person sitting inside a moving vehicle is in motion along with the vehicle. अगर कोई पर्सन जो व्हीकल में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो व्हीकल के साथ साथ में, गाड़ी के साथ साथ में वो भी मोशन स्टेट में होता है। अगर गाड़ी चल रही है उसमें कोई इंसान बैठा है तो वो भी क्या होता है, मोशन स्टेट में होता है, ठीक है। When the vehicle comes to a halt, the lower body of the person which is in contact with the seat comes to rest immediately, while the upper body remains in motion due to the inertia. जैसे ही व्हीकल जो होता है वो रुकने लगता है, ठीक है, तो जो अपर बॉडी जो होता है, जो बैठा रहता है व्हीकल में, उसका जो अपर बॉडी होता है वो इनर्शिया के कारण मोशन स्टेट में आ जाता है। और जो लोअर बॉडी होता है वो सीट के कांटेक्ट में होने की वजह से रेस्ट स्टेट में होता है, ठीक है। हेंस द पर्सन सिटिंग इनसाइड द व्हीकल बेंड्स फॉरवर्ड। इसी वजह से जो इंसान जो व्हीकल में बैठा होता है, मतलब बस के अंदर बैठा हुआ है या गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ है वो फॉरवर्ड बैंड हो जाता है। सिमिलरली यू कैन टेल व्हाई अ पर्सन बेंड बैकवर्ड व्हेन द व्हीकल स्टार्ट टू मूव सडनली। क्या आप बता सकते हैं कि अगर गाड़ी में एक इंसान बैठा है तो इसी तरह से जैसे वो फॉरवर्ड होता है वो बैकवर्ड बैंड क्यों हो जाता है? अगर गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ क्यों खिंचा जाता है? इनर्शिया की वजह से ना। यस यस मैम। ठीक है, यस मैम। देखो इनर्शिया और मास दिया हुआ, इनर्शिया और मास क्या होता है, ठीक, देखते हैं। फ्रॉम ऑल द एग्जांपल्स दैट आर गिवन अप टिल नाउ we can see that every object resists any change in its state. हमने जितने भी एग्जांपल अभी तक हमने देखे उसमें हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन में होता है, जिस स्टेट में होता है, उसका स्टेट जो है चेंज होता है ना। अगर वो स्टेशनरी स्टेट में है तो मोशन स्टेट में होगा, मोशन स्टेट में तो स्टेशनरी स्टेट में होगा, होता है ना। यस It मैम। does to change its state to remain in its initial state of motion. ये खुद नहीं चाहता है, मतलब ये क्या अपने से हो सकता है क्या? अगर वो मोशन स्टेट में तो अपने से रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा या अपने से मोशन स्टेट में आ सकता है? नहीं आ सकता ना। दिस कैरेक्टरिस्टिक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसी कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट के इसी कैरेक्टर को इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। यस मैम। तो अभी मैं आप लोगों को जो चैप्टर 9 है उसका नोट सेंड कर रही हूँ, उसे नोट कीजिए और चेक करवाइए। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, आगे का हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम।